بار بار اثر انداز ہونے کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے۔ بالکل یوں ہی ہر وہ بچہ جو اولیاء کی محبت لے کے پیدا ہوتا ہے وہ ماحول اور حالات کے اثرات کی بنیاد پہ وہ اللہ والوں کی محبت کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ وہ کوئی زیادہ نہیں بلکہ حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے دل پہ گرد سا جم جاتا ہے۔ جب وہ گرد ہٹ جائے تو خدا کی قسم ہر دل میں محبت کی ولی محبت شمع چمکے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت ہے جس کے تعلق سے قرآن حدیث ہمیں اس طرح رہنمائی فرماتے ہیں۔ بے شمار روایات ہیں جو اللہ والوں سے محبت کے تعلق سے، ان کے مقام مرتبے کے حوالے سے، ان کے شان و عظمت کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں ہدایات دیتی ہیں، بلکہ پورا اسلام شروع سے لے کر آخر تک ہمیں محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ کون سا دین پڑھایا جا رہا ہے کہ آج ہماری نئی نسلیں اولیاء سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان معاذ اللہ سب معاذ اللہ اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے شان و عظمت سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہم تو اس دین کو نہیں جانتے۔ قرآن جو دین لے کر آیا ہے، حدیث جو ہمیں دین دے رہا ہے، حضور کی ذات سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 1400 سالہ امت کے ذریعے سے ہمیں جو دین ملا ہے، اس دین میں تو اولیاء کی محبت کود کر بھری ہوئی ہے۔ اس دین میں تو بزرگوں کی تعظیم کا جام ہمیں پلایا جاتا ہے۔ آج یہ کون سا دین ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ کون سے مذہب کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے جس میں اولیاء سے نفرت اور اللہ والوں سے بغض و عداوت رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو یہ کوئی دین، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں بزرگوں کے تعلق سے رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو اللہ والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہر مسلمان کے تعلق سے، کسی کے بھی تعلق سے ہمیں بدگوئی کرنے، کسی کی بے ادبی کرنے، کسی کے خلاف کوئی بدتمیزی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ کتنی مشہور حدیثیں ہیں، کتنی روایات ہیں، کتنی آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحمنا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے ہمارے من لم یرحم کبیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہی پڑھا ہے بے شک، جو ہمارے بزرگوں کی ادب و تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے بزرگوں کا ادب اور ان کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا، ہم اپنے ماں باپ، والدین اور جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کا بھی ادب کریں، ان کا بھی احترام کریں۔ یہ بزرگان دین جن کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ ہم سے سینکڑوں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ نہ صرف عمر میں بلکہ ایمان میں، علم میں، تقوی میں، ہر لحاظ سے ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہیں، ہم سے ہزاروں گنا اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ جو اسلام ہمیں اپنے برابر والے کے ساتھ بے ادبی کا حکم نہیں دیتا، بدتمیزی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ بچوں پر بھی، چھوٹوں پر بھی شفقت کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام کیا یہ تعلیم دے گا کہ ہم اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی کریں، ہم اپنے بزرگوں کی شان میں بکواس کرتے پھریں؟ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اگر یہ کوئی بکواس کرتا ہے یہ اس کی اپنی من سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی السلام۔ حدیث کو حضور غوث پاک سے منسوب کیا گیا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ان اللہ والوں کے تعلق سے ہم نے جو کچھ سنا ہے، ان کی محبت کا اسلام ہمیں کس طرح حکم دیتا ہے، کس طرح ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو آئیے تبرکاً کچھ جملے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ بے شک۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے
एक ऐसी हस्ती रुए जमीन पर भेजूस फरमाया है। आपसे पहले जितने अंबिया आए थे हजरत आदम से लेकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक, किसी नबी के ताल्लुक से परवरदिगार ने इतनी वजाहत से उनकी जिंदगी को महफूज नहीं फरमाया। किसी नबी की जिंदगी इस तरह से महफूज न रही जिस तरह हुजूर की जिंदगी महफूज है। उनकी जिंदगी तो दूर की बात, दूसरे नबियों की शरीयत भी महफूज नहीं थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान कि आपकी शरीयत, आप पे नाजिल होने वाली किताब तो दूर की बात, आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा, आपका हर हर इरशाद, हर कौल परवरदिगार ने महफूज फरमाया है। महफूज का भी वो अजीम तरीका कि आज तक कायनात में किसी शख्सियत का जिक्र, किसी की सबाने हयात, किसी की जिंदगी इस तरह महफूज नहीं है जैसे हुजूर की जिंदगी महफूज है। पूरी जिंदगी आपके एक एक कौल और इरशाद को इस तरह परवरदिगार ने महफूज फरमाया कि एक एक हदीस आप पढ़कर देखें, रिवायात देखें कि एक सनद है, एक सिलसिला है जो साहिब किताब नकल करते हैं वहां से लेकर हुजूर तक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर किताब लिखने वाले मुहद्दिस तक एक सिलसिला, एक सनद होता है। उस पूरे सनद को आप देखें कि परवरदिगार ने कितने एहतमाम के साथ अपने नबी की जिंदगी को महफूज फरमाई है। इस सनद के जरिए से सरकार के इरशादात और आपकी सवाले और आपकी जिंदगी को जिस तरह परवरदिगार ने महफूज फरमाया है, ऐसे किसी और की जिंदगी महफूज नहीं की गई है। ये सिर्फ खासा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद 1400 साल तारीख में कम से कम मेरी कम इल्मी में, मेरे इल्म में तो ये बात नहीं आई है और किसी के ऐसे नजर भी नहीं आती कि सरकार के बाद किसी की जिंदगी, किसी की सवारी इस तरह महफूज हो। सिर्फ एक जात हमें नजर आती है जिसकी जिंदगी इस तर्ज पर महफूज है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी महफूज है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म की सवाने आपकी जिंदगी बिल्कुल सनद के साथ एक एक वाकया महफूज है, एक एक वाकया महफूज है। आपकी विलादत से लेकर वफात तक बहजतुल असरार के नाम से किताब है जो आपके सवानी की सबसे मोतबर किताब है। अल कलाइदुल जवाहिर और दीगर किताबें भी हैं, सबसे मोतबर बहजतुल असरार को कहा जाता है। इस किताब में आप देखें हर हर वाकया सनद के साथ हुजूर गौसे आज़म से लेके साहिब किताब तक सनद के साथ एक एक वाकया महफूज है। आपकी विलादत से लेकर के वफात तक आपकी पूरी जिंदगी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी महफूज थी, बिल्कुल यूं ही हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी को महफूज किया गया है। यह मकाम व मर्तबा आपको परवरदिगार ने इरशाद फरमा अता किया है, जिससे बिल्कुल हुजूर इमाम अहमद रज़ा का ये शेर आपके सादिक आता है कि बरफाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र ऊंचा तेरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमने जो कुछ कहा है कहने सुनने में लफ्ज़िश हुई हो तो परवरदिगार तो अपने फज़ल करम से माफ फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आज़म, नारा तकबीर, नारे हैदरी, एक मरतबा दर्द पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनी वल करम वल हिकम व बारिक वसल्लम। यही है ऐसे इस अंदाज से किसी और की जिंदगी महफूज नहीं की गई। हुजूर आला हज़रत जिस अंदाज से फरमाते हैं, इमाम अहमद रज़ा जिस तरह फरमाते हैं, आज़म आपके दादा के लिए परवरदिगार ने फरमाया था बरफाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब आपके लिए हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, आपके लिए हमने आपके मर्तबे को बुलंद किया है। इस आयत का साया आप पर भी नजर आता है। हुजूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह आपके दादा का मकाम मर्तबा खुदा ने सारी दुनिया में सबसे ऊंचा फरमाया था, बिल्कुल उसका साया, उसका असर अब है। जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां वहां आला हज़रत का जिक्र हमें मिलता है, उनका तस्करा मिलता है। मैं मिस्र में कुछ साल रहा और वहां के जरिए वहां मैं ज़ेर तालीम था। तकरीबन 106 ममालिक के तलबा वहां पढ़ते थे। अल अज़हर, जामियातुल अज़हर नाम आपने सुना होगा, आलम इस्लाम की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी है। इस्लाम का इल्म का मरकज कहा जाता है उसे। अरबी में एक मकूला मशहूर है, अल अज़हर काबतुल लिल इल्म,
अजहर शरीफ ये इल्म का काबा है, अकीदत का काबा मक्के में है, इल्म का काबा मिस्र में है। तो ये वो जगह, सारी दुनिया अपने तो अपने गैर भी इसे मरकज तस्लीम करते हैं, गैर भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अजहर वाकई मुसलमानों का मरकज है, सारे मुसलमानों का आलमी और इल्मी मरकज यही है। वहां के उलमा इस वक्त भी इतने जय्यद उलमा नजर आते हैं कि वैसे उलमा, ऐसा इल्म दुनिया में तलाश करने से भी नहीं मिलता। उन उलमा को सारी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही फौकियत हासिल है जैसे सितारों में चांद के मानिंद। आज भी उस सरजमीन पर ऐसे उलमा मौजूद हैं जिनको मुज्तहिदीन कहा जा सकता है, जिनको मुज्तहिद इल्म फिक्र का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, उस मर्तबे पर फाइज उलमा भी आज वहां मौजूद हैं। उतने बड़े बड़े उलमा को देखने के बाद आंखें खीरा हो जाती हैं, अक्ल दंग रह जाती है कि इस दौर में भी अल्लाह ताला ने कैसी कैसी हस्तियों को बाकी रखा है। तो उन बुजुर्ग हस्तियों के ताल्लुक से जब हम देखते हैं, मैं वहां रहा हूं, ऐसे बड़े बड़े उलमा इकराम के ताल्लुक से, उलमा इकराम से मुफ्ती भी नक़्दो तनक़ीद पर आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। तो मुफ्ती अली जुमा साहब कुबला से अभी एक इस्तफ्ता हुआ है कि आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? गुल मांग रहे हैं, नकली मांग रहे हैं, गुल मांग रहे हैं, नकली मांग रहे हैं, हम खाक दरे यार अली मांग रहे हैं, हम खाक दरे यार अली मांग रहे हैं। मिल जाए हमें प्यार नबी दोनों जहां में, मिल जाए हमें प्यार नबी दोनों जहां में, इस वास्ते हम खाक वली मांग रहे हैं। मिल जाए हमें प्यार नबी दोनों जहां में, इस वास्ते हम खाक वली मांग रहे हैं, इस वास्ते हम खाक वली मांग रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका दिल रोशन रहे, मुनव्वर रहे। बस चंद अशआर हमसे समाअत फरमाएं और इसके बाद फिर बड़े कमसिन नात खान से जो आपने फिर आपके सामने वो हाजिर होंगे और आपके दिल को रोशन करेंगे। चंद अशआर उससे समाअत फरमा लें। बाद रब साहिबे मर्तबा कौन है, बाद रब साहिबे मर्तबा कौन है, मुस्तफा के सिवा दूसरा कौन है, मुस्तफा के सिवा जिन्नो इंसान हो के हो रो मलक। मौलाना ने जो तकरीर की थी मैं उनको नज़्म में पेश कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जिन्नो इंसान हो के हो बे मर्तबा कौन है, मानता हूँ कि उम्मी है आका मेरे, मानता हूँ कि उम्मी है आका मेरे, फिर भी उनसे ज्यादा पढ़ा कौन है, फिर भी उनसे ज्यादा पढ़ा। देखो नाम नबी सुन्नियों के सिवा चूमता कौन है। सुन के फौरन अंगूठे को नाम नबी सुन्नियों के सिवा चूमता कौन है, सुन्नियों कौन है।
आप लोग नाते नबी सुन रहे हैं, माशाअल्लाह सभी वजद में हैं। जरा एक शेर समाअत फरमाएं। सुन के नाते नबी बज़्म सरकार में, सुन के नाते नबी बज़्म सरकार में, सुन्नियों के सिवा झूमता कौन है, सुन्नियों के सिवा झूमता कौन है, सुन्नियों के सिवा झूमता कौन है। हो के मक सुन के नाते नबी बज़्म सरकार में, सुन्नियों के सिवा झूमता कौन है। हम लोग ये जो 11वीं 12वीं मनाते हैं, जानते हैं 11वीं 12वीं हो या उर्से वली, हो छठी 11वीं 12वीं हो या उर्से वली, नजदियों के सिवा रोकता कौन है, नजदियों के सिवा रोकता कौन है। हो छठी 11वीं 12वीं हो या उर्से वली, रोकता कौन है। और पढ़ के कलमा उन्हीं का उन्हीं से जलन, पढ़ के कलमा उन्हीं का उन्हीं से जलन, नजदियों से बड़ा बेहया कौन है, नजदियों से बड़ा बेहया कौन है। सुन्नियों के तवज्जो दीजिएगा। लग ही जाएगा नजदी पता हश्र में, लग ही जाएगा नजदी पता हश्र में, बेवफा कौन है वफा कौन है। लग ही जाएगा नजदी पता हश्र में, बावफा कौन है बेवफा कौन है, बावफा कौन है बेवफा कौन है। सुन्नियों के सिवा चूमता कौन है। और इस शेर पे जरा तवज्जो दीजिएगा, जरा हकीकत बयानी से काम ले रहा हूं। मुफ्ती हजरत कमर पीर के मिसल का हजरत मौजूद है। मैं मुंह के सामने तारीफ की बात नहीं है कि हजरत मौजूद है इसलिए तारीफ कर रहा हूं, नहीं। चांद वो है जो खुद रोशन होता है। मुश्कआ गोयत मुश्कआ बासत बबोयत न के अत्तार गोयत। मुश्क वो होता है जो खुद खुशबू से पहचान लिया जाता है। इत्र बेचने वाले को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये फला इत्र है, ये मुश्क है, ये फला है, ऐसा नहीं होता, वो खुद हो जाता है। मुफ्ती हजरत कमर पीर के मिसल का आज के दौर में पारसा कौन है, आज के दौर में पारसा कौन है। मुफ्ती हजरत कमर पीर के मिसल का आज के दौर में पारसा कौन है। सुन के नाते नबी बज़्म सरकार में सुन्नियों के सिवा झूमता कौन है, सुन्नियों के सिवा झूमता कौन
फौरन अंगूठे को नाम नबी सुन्नियों के सिवा चूमता कौन है सुन्नियों के सिवा चूमता कौन है कुर्बान मन की बख्शिश पे कुर्बान मन की बख्शिश पे मकसद भी
जतन का गुलाम हूँ मैं जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की सच्ची उल्फत मोहब्बत मिलेगी, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की सच्ची उल्फत मोहब्बत मिलेगी, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की सच्ची उल्फत मोहब्बत मिलेगी, सच्ची उल्फत मोहब्बत मिलेगी, कल बरोज़े क़यामत उसी को उसी को फज़ल मौला से जन्नत मिलेगी, कल बरोज़े क़यामत उसी को
सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मैंने पिछली मर्तबा जब आया था यहाँ पर कन्नूर को 1 महीना तक देखो दुश्मनी गौसे आज़म से छोड़ो नजदियों दिल की आंखों से देखो दुश्मनी गौसे आज़म से छोड़ो नजदियों दिल की आंखों से देखो दुश्मनी गौसे आज़म से छोड़ो दुश्मनी गौसे आज़म से छोड़ो अरे शाह बगदाद की हर अदा में शाह बगदाद की हर अदा में तुमको जिंदा करामत मिलेगी शाह बगदाद की हर अदा में तुमको जिंदा करामत मिलेगी कल बरोज़े क़यामत उसी को फज़ल मौला से जन्नत मिलेगी। अब आला हज़रत की गुफ्तगू करेंगे। आला हज़रत की बारगाह में जो खुदा के हवाले से यहाँ बैठे हुए हैं। मीरो इक़बाल मीरो इक़बाल मीरो इक़बाल रज़ा की वफ़ा के हैं तालिब मीरो इक़बाल और दाग गालिब सब रज़ा की वफ़ा के हैं तालिब मीरो इक़बाल और दाग गालिब सब रज़ा की वफ़ा के हैं तालिब सब रज़ा की वफ़ा के हैं तालिब अरे फन शेरो अदब में नुमाया फन शेरो अदब में नुमाया आला हज़रत की मेहनत मिलेगी फन शेरो अदब में नुमाया आला हज़रत की मेहनत मिलेगी कल बरोज़े क़यामत उसी को फज़ल मौला से जन्नत मिलेगी। अब वो शेर पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इस शेर को सुनने के बाद कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। ये शेर उसमें छोटे बच्चों के लिए और बड़े हज़रात के लिए भी जिन जिन लोगों की अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं जो लोग इंशाअल्लाह इस शेर को सुनने के बाद वो जरूर मुझको दुआओं से नवाजेंगे। एक मरतबा अपनी माँ के नाम पे दोनों हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत है वही दोनों हाथ उठाएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा या रसूल अल्लाह कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माँ हमारी माँ हमारी है ममता की नूरा कितनी प्यारी लगे माँ की सूरत माँ हमारी है ममता की नूरा कितनी प्यारी लगे माँ की सूरत माँ हमारी है ममता की नूरा कितनी प्यारी लगे माँ की सूरत तो कितनी प्यारी लगे माँ की सूरत अरे माँ की खिदमत करो जानो दिल से माँ की खिदमत करो जानो दिल से माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी माँ की खिदमत करो जानो दिल से माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की सच्ची उल्फत मोहब्बत मिलेगी कल
بروز قیامت اسی کو فضل مولا سے جنت ملے گی. ایک مرتبہ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ کوئی نعرہ لگا دو تو عاشق رسول. بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ. خدیجہ سبحان اللہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ. بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ جہاں پہ فرشتوں کا میلہ لگا ہے. بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ جہاں پہ فرشتوں کا میلہ لگا ہے. بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ جہاں پہ فرشتوں کا میلہ لگا ہے. اسی کے وسیلے سے ہریالیاں ہیں. اسی کے وسیلے سے ہریالیاں ہیں کہ گنبد میرے مصطفیٰ کا ہرا ہے. اسی کے وسیلے سے ہریالیاں ہیں کہ گنبد میرے مصطفیٰ کا ہرا ہے. نبی کی محبت نبی کی عقیدت خدا کی قسم خلد کی ہے زمانہ. نبی کی محبت نبی کی عقیدت خدا کی قسم خلد کی ہے زمانہ. نبی کی محبت نبی کی عقیدت خدا کی قسم خلد کی ہے زمانہ. یہی ہے حدیث نبی کا خلاصہ. یہی ہے حدیث نبی کا خلاصہ. یہی رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. یہی ہے حدیث نبی کا خلاصہ. یہی رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. اور بیان کیا کرے کوئی رتبہ نبی کا کوئی ان کے جیسا زمین پر نہ. بہت آواز سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضرات سے بھی گزارش اپنے نبی کے نام پر بولیں سبحان اللہ. میرے لیے مت بولیں نبی کے نام پر بولیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. بیان کیا کرے کوئی رتبہ نبی کا کوئی ان کے جیسا زمین پر نہ آیا. بیان کیا کرے کوئی رتبہ
بھی سرکار کا تذکرہ ہے، اسی کے وسیلے سے ہریالیاں ہیں کہ گنبد میرے مصطفیٰ کا ہرا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے، اس کے بعد مقطع ہوگا۔ میں سارے حضرات وہ جس پر نچھاور ہوئے سارے حضرات، زمانے نے جس کو کہا اعلیٰ حضرات، زمانے نے جس کو کہا اعلیٰ حضرات، وہ جس پر نچھاور ہوئے سارے حضرات، زمان